समझ ये सजना, दिन दिन धक धक तू ना, सोच समझे सजना, सोच समझे सजना कर ले. Good evening and namaskara to everybody. Today's program is a joint program by the Bharati Vidya Bhavan, Infosys Foundation and Artify. We have a Hindustani classical vocal recital by Dr. Pandit Suhas Vyasji. Ladies and gentlemen, please welcome Pandit Suhas Vyasji onto the dais. Shri Vyasmurti Katti, Shri Kiran Yavgal, Sujit and Shamantak on the Tanpura. I request Meeta Gangradi, founding member Artify, to please honor the artist. Pandit Suhas Vyasji, Pandit Vyasmurti Katti ji, Shri Kiran Yavgal ji, Manohar Patwardhan for vocal support, Sujit and Shamantak on the Tanpura. If emotion is the soul of music, Pandit Suhas Vyas believes that this is how he must lead his life. An artist who is dedicated, who lives music, breathes music, performs, regales the audience, and not only that, he also enjoys himself in the music that he creates. One of his constant endeavors is to imbibe in his audience this principle that he believes in and the passion to become a Hindustani classical vocalist that has made him this fantastic artist that he is. Suhasji started imbibing musical values at a very tender age. Before he even knew, music became his passion. The early times of his life as a student was spent in the deep influence of giants of Hindustani classical music, and the most difficult part of discovering his own self in music. He has had the privilege of being guided and mentored by his illustrious father, Padma Bhushan Pandit C.R. Vyasji, who taught him to think like a musician. Though he was guided by such a towering personality, Panditji was born with artistic qualities, the one which cannot be taught, but which one has to be born with. And the major part of this is the madness, for want of a better word, the underlying passion to become an artist that cannot separate an art from the artist. Listening to Suhasji's music, one can discern the immense intensity and the method that is part of this passion. The underlying emotions never get sidelined in his music, and there is no attempt to obey only the fundamental music of the ragas. Instead, it is this evolutionary quality of music which unfolds and takes time that he brings forth. Suhasji has performed in various prestigious forums in and around India. He has cut CDs, he has directed musical plays, TV series, and he has several important achievements. He is today recognized as a torch bearer of this ancient tradition that he is carrying forward. And he is also a graded artist of the All India Radio, and he does music concerts along with lecture demonstrations. So I please welcome you to, request you to welcome Suhasji. On the harmonium, we have none other than Pandit Vyasmurti Katti ji, who is very familiar to all of you here today. Vyasmurti Katti ji was born and brought up in Solapur. He was initiated into music at a very young age by his sisters, and he later on went on to take systematic training in harmonium under the able guidance of Pandit Ramacharya Bagewadi of Solapur.
Presently, he is learning vocal music under the expert tutelage of Pandit Indudhar Nirodi of the Agra Gayaki. Shri Katiji is much sought after harmonium player, like I already mentioned, and he has accompanied eminent artists, namely Dr. Gangubai Hangal, Pandit Bhimsen Joshi ji, Pandit Ramra Nayak, Pandit Dinkar Kaikini ji, Pandit Yashwant Bua Joshi, Pandit Rajanji Sajanji Mishra, Pandit Ajay Chakravarti ji, Pandit Ullas Kashalkar ji, the list goes on, Pandit Indudhar Nirodi ji, Vasundhara Komkali ji, Begum Parveen Sultana, Srimati Lalit Rao, Srimati Veena Sahasrabuddhe, Pandit Dr. Ashwini Bhide Deshpande, Padma Talwalkar ji, and so many others. He is toured with Pandit Parameshwar Hegde ji, Begum Parveen Sultana, Kaushiki Chakravarti, Pandit Rajanji Sajanji Mishra, Srimati Veena Sahasrabuddhe in various concerts outside India, and he has performed at all prestigious venues in our country. So please welcome Pandit Vyasmurthy Katiji on the harmonium. We have Kiran Yaugalji on the tabla. You may all know his father, Pandit Ravindra Yaugalji. He is a disciple of his father, and he is also a graded musician of All India Radio. He is upcoming, and he has accompanied several artists. On vocal support is Manohar Patwardhan. I suppose you know Manohar is upcoming, and he is the illustrious student of Srimati Lalit Rao ji. So I request Pandit Suhas Vyasji to take us through this program, please. नमस्कार. मैं भारतीय विद्या भवन मोना रामचंद्रन जी and one of the finest vocalists, Bharti ji, Shravan Poddar. I am very much thankful to these people that they have given me this opportunity to perform here. I am performing after 15 years in Bell. 15 years. I don't remember, but I think I had come in Parameshwar Hegde's some festival. Today, on the occasion of my father's birth centenary, I am going to present his two rags. First is Dhankoni Kalyan, and the second one is Sudharanjani. Two compositions in Dhankoni Kalyan, two compositions in Sudharanjani. And as I am told by Mona ji and all people, if anybody has got some questions, I will answer it, or I will conclude the concert with any of his composition. Thank you. I am happy to see Bharti ji, Pratap ji, Velankar ji in my concert. Again, Vyasmurthy ji, one of the best harmonium player of Karnataka. Kiran, Ravindra ji's son. And Manohar, Lalit Rao's disciple, who has agreed to give me vocal support. And these two Tanpura players, sorry, I don't remember their name. Sudhirkar. Sujit. And Samantha.
सुरगाँव
करता चेतानंद घन पावू सरस सुर गावू मन रिझावू सरस सुर गामा पानी पानी माप गम गपरे निसा नीप गरे निसा म गपरे निसा गामा पानी सानी पानी माप गम गपरे निसा सर सुरगाऊ सुरगाऊ माना जाऊं ये माना रे जाऊं गोनिया सेवा करता चेतनानंद घन पावू सरस सुर सुरगा चेता आनंद घन पाऊ सर सुर
मन रिझा gama pani sani pani ni pama pama gama pa ga pa re sa sa gama pama gama pa ga pa re sa ni pani ma pa gama pa ga pa re sa pani sa re sa ni sa gama pani ni pama pama gama pa ga pa re sa ni sa gama pa ga ma pani sa ni pani ni pama pama gama pa ga pa re sa बीते जीवन कछु काम नावे आवा तो गुनी जान दिन हारा नाम ध्यान लगाऊं सरस सुर
Suragamo mana jao Guniyana ke seva karata Cheta ananda gana babu sarasa suragamu sada Bama gama bani ni bama ba gama ba ga pare sa sa gama bama gama bani ni bama ba gama ba ga pare sa ni sa gama ba gama bani sa ni bani ni bama ba gama ba ga pare sa bama gama bani sa ni bani ni bama ba gama bani ni bama ba gama ma ga re sa ni sa sa ra sa sura ga चंदा नवनी कस आयो देख 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 चंदा देख चंदा नवनी कस आयो अब तो वही बेर जाने दे घर मो अब तो वही बेर जाने दे घर मो रद कर छो किया खबर आवे देख चंदा नवनी कस आयो देख चंदा नवनी कस आयो अब तो वही बेर जाने दे घर मो घर से घर छो घर से घर छो जिया खबर आवे देख चंदा नवनी कस आयो देख चंदा देख चंदा नवनी कस आयो अब तो वही बे जाने दे घर मो घर से घर छो किया घबरावे देख चंदा नवनी कस आयो देख चंदा नवनी कस आयो देख चंदा देख चंदा देख चंदा
नवनिक सायो देख चंदा देख 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 चंदा नवनिक सायो नित की बात संग कुंवर कान नित की बात संग कुंवर कान संग कुंवर कान मन भूल बाट कियो मोरा घात कैसे छिपाऊं मिलन की जो नजर गऊं धन की मोहे डरावे देख चंदा नवनिक सायो देख चंदा नवनिक आयो 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 देख चंदा देख चंदा नवनिक आयो अब तुम ही बेर जाने दे कर मुँह कर से कर छो जिया घबरावे देख चंदा हूँ देख चंदा नवा हाँ निशा है ना पूरा मेरे तरफ बजा हाँ ये क्यों नहीं चलता मोना जी ने पूछा है कि ये दो राग कंपोज होते कैसे हुआ कंपोज। ये जो दूसरा राग है ये थोड़ा सा स्केल का राग है। वो एक ऐसे उनके बहुत से कंपोजिशन क्या है कि हम रियाज करते हैं और रियाज करते समय कभी कभी हम रटते हैं सारे गा मा पा धा नि सा सा नि ध प म ग रे सा, लेकिन मराठी में हम लोग बोलते हैं कि डोळस रियाज करना, कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता होना चाहिए और मुझे क्या करना है उसका भी पता चलना चाहिए। सो हर कोई इंसान, हर कोई कलाकार जो एक मकाम पर पहुँचे उनका रियाज वो ऐसा था। तो ये भी सुधरंजनी राग जो है, शुद्ध दैवत की रंजनी, इसका अर्थ ये है। सो वेरी सिंपल है। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कर्नाटक संगीत जानता नहीं हूँ लेकिन कर्नाटक संगीत में रंजनी नाम का कोई राग है और संगति है, बराबर है। बस उसको वो रेगम संगति को थोड़ा बढ़ाया है। तो कैशिक रंजनी जो राग है उसका जो दैवत है वो कोमल है,
वो गाते गाते पिताजी को शुद्ध दैवत लग गया, उसको उन्होंने बढ़ाया और ये राग तैयार हुआ। लेकिन धनकोनी ऐसा नहीं है। धनकोनी इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन। हम राग गाते हैं तो राग की कल्पना संकल्पना जो है वो उसके फ्रेजेस से होती है। तो एक दिन शाम को पिताजी रियाज के लिए बैठ गए और पंचम तानपुरे पर था, तभी तो गैजेट्स नहीं थे। और अभी जैसे मैंने इनको कहा कि आप हनुमानासन डाल के बैठिए, तो उस समय सब कलाकार लोग 4-4 घंटे वैसे ही बैठते थे। उसका कारण है, मैं एक बार जब भी छोटा था, कुछ ज़्यादा गाता नहीं था, एक बार घर में मैं वो बैठने से सब प्रॉब्लम होता है ना, अपने नीज को प्रॉब्लम होते हैं, फिर बहुत पेन्स होते हैं। तो मैं 10 मिनट के बाद मैंने तानपुरा ऐसा उसको नीचे किया और मैं ऐसा ही गा रहा था। तो हमारे पिताजी के पहले गुरु पंडित राजाराम बुआ पराड़कर, वो हमारे घर में आए थे। वो वहाँ से मैं गाने के लिए बैठा था बोल के वो हमारे रूम में आया। पहला उन्होंने वैसा तानपुरा देख के मुझे पहला उन्होंने गाली दिया। वो बोले ऐसा क्यों तानपुरा लिया? तो मैंने बोला नहीं, वो बहुत दुखते हैं बहुत। तो उन्होंने मराठी में, हम लोग बोलते हैं जो मैं आप समझ जाएंगे, मुझे बोला तुला गाणं आडवं करायचं आहे का उभं करायचं आहे? सो उन्होंने बोला ऐसा नहीं बैठने का, और मुझे वो सामने बैठे और मेरा 2 घंटा तो क्या हालत हो गई आप समझ जाइए। उसका कारण उन्होंने बताया, ये तानपुरे का जो ये तुम्बा रहता है वो और ऊपर के खुंटिया, इसमें जो डिस्टेंस रहता है वो हम बीच में बजाते हैं, तो वो कान को हमारे सुर मिलता है। अब ऐसे बैठने से सुर नहीं मिलता है, तानपुरा बजता भी नहीं है बराबर। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों बैठने का? इसके लिए बैठने का, ये जो डंडी है उसके बीच में तानपुरा बजना चाहिए और अपने कान के पास रहना चाहिए, ये उसका कारण बताया। तो हमारे पिताजी ऐसे रियाज को हर दिन सुबह भी 5 बजे से 8 बजे तक ऐसे ही बैठते थे, तो हमको भी बैठना ही पड़ता था। तो वो तानपुरा छेड़ने लगे और उनके गले से ऐसी एक फ्रेज निकली, सा गा रे नि सा नि प गा रे नि सा, इतना ही। वो निषाद पंचम नहीं आए थे, तो उनको लगा अच्छा लग रहा है कान को। ही कंटिन्यूड विद दैट फॉर 2 आवर्स। उतनी ही संगति लेते थे वो, फिर छोड़ दिया उन्होंने कि आगे कुछ उनको सूझता नहीं था। दूसरे दिन बैठे, ऐसे 8 दिन गए, इस फ्रेज के सिवा उनको कुछ सूझता नहीं था। 8 दिन के बाद गे नि सा नि प गे, पंचम से गद्दार गए। सो पंचम गंधार ये शुद्ध कल्याण की संगति है। तो उनको 2 संगति मिल गई। गरे निशा में कोई ये नहीं था, वो कान को अच्छी लग रही थी। गंधार, शुद्ध ऋषभ और कोमल निषाद। गरे निशा नि प गरे निशा, इसको यहाँ पर कंप्लीट किया, उसमें बहुत दिन गए। सो क्रिएशन, और आपने जो बोला इंस्पिरेशन,
तो इंस्पिरेशन क्या था कि उस संगति को लेके वो गाते बैठे थे कि इसको आगे इम्प्रोवाइज कैसा करना है। एंड ग रे नि सा नि प ग रे नि सा म ग प रे नि सा, ये पंचम ऋषभ संगति भी कल्याण की है। तो ये कल्याण का जो स्वरूप है उसमें कोमल निषाद है, उसमें धैवत निकल गया। इसलिए जिसमें धैवत नहीं है, ध न और को नी, कोमल निषाद जिसमें, ऐसा कल्याण, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। वो उन्होंने नाम उनके हिसाब से रखा। अब दूसरी बात यह है, सा ग म प म ग म ग प रे नि सा, यहाँ पर राग खत्म होता है। यहाँ पर राग की सब आगे फिर आपको इम्प्रोवाइज करना है। तो कल्याण में तीव्र मध्यम के साथ कोमल निषाद कभी आता नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है, लेकिन इसमें आया है सा ग म प म ग म ग प रे नि सा, ग म प नि म प ग म ग प रे नि सा नि प ग रे नि सा। ये ऐसा 2 महीना चल रहा था। आगे उनको कुछ एक बार रास्ता मिल गया, फिर गम पनी सा जब जाके फिर उसको कंप्लीट हो गया। और ये जब उनका ये कॉम्पोजिशन है तब ही वॉज रादर 44-45। लेकिन माय फादर्स एक बहुत बड़ी उनकी एक देन ऐसी है कि जिनको हम कहते हैं ही वॉज ए स्पिरिचुअल पर्सन, ही वॉज नोइंग द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। सो ये जो बंदिश के शब्द है, सरस सुर गाऊं मन रिझाऊं, गुनियन की सेवा करत चित्त आनंद घन पाऊं। मेरी जो आगे की जिंदगी है, बस मैं सुर अच्छे गाते रहूं, लोगों को रिझाते रहूं, गुणी लोगों की सेवा करते रहूं, चित्त आनंद घन पाऊं। उसका जो आनंद मुझे मिलेगा वो मिलना चाहिए। क्यों? कि बीते जीवन कछु काम नहीं आवे। हमारा जो लाइफ गुजरता है वो पीछे जो हो गया आपको आगे काम नहीं आता है। अब तो गुनी जान निस दिन हर नाम ध्यान लगाऊं। Our Vyas family has got a spiritual background, so that reflects in his composition. So पहली बार ये राग जब वो गाए प्रेजेंट किया, तब हमारे देश के सबसे मान्यता प्राप्त या बहुत बड़े कलाकार डॉक्टर एस.एन. रातंजनकर सामने बैठे थे। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमारे पिताजी जब उनको नमस्कार किया तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा कि जो शास्त्र को मान्य नहीं है उसको तो आपने मान्य करवाया है। इसमें ये मध्यम और निषाद ये कल्याण में बहुत अच्छा लगता है और ये आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा है। तो इंस्पिरेशन वॉज हिज रियाज। मेरा गला चलना चाहिए, मेरी तान चलनी चाहिए, ये लयकारी होनी चाहिए, ये सब तो होता ही है, लेकिन आपको एक कल्पना मन में आए और उसको आप इस्टेब्लिश करें, उसके लिए रियाज बहुत आँख खोल के करना पड़ता है। और ये सब लोगों ने, उस समय के सब कलाकार ऐसे ही थे कि उनका रियाज उनका इंस्पिरेशन था। बस ये 2 रागों में ने, और उनका एक दुगोमंडल बोल के एक राग है, बहुत अच्छा राग है वो। उस राग में ऐसा कहते हैं कि बहुत पहले 300-400 साल शुद्ध मध्यम के साथ हिंडोल गाया जाता था। तो अभी आज के ज़माने में वो तीव्र मध्यम से गाया जाता है।
उस दोनों मध्यम को उन्होंने एक किया और दुगम हिंडोल, दुगम यानी दो गंधार दो मध्यम, वो उसका अर्थ है। और वो भी एक बहुत अच्छी कंपोजिशन है। सगेरा बोल के एक कंपोजिशन है। सगेरा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 राग्स, विभास, अहिर भैरव एंड कलावती। These are the 3 combination. So राग कंपोज करना, इसके लिए हम लोग वाग्यकार कहते हैं कि जिसको शब्द, सुर, ताल, लय, उसका एक अनोखा ज्ञान होता है, वही वाग्यकार हो सकता है। एंड माय फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर, वाग्यकार। नहीं है, अच्छी बात है। आई एम सेव्ड। मैं अभी जिसका जिक्र किया वो सिर्फ उसका आउटलाइन बताता हूँ, बंदिश नहीं गाता हूँ। पिताजी ने बहुत कॉम्पोजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं अनवट राग, उसमें भी किए हैं। तो आपने मालव सुना होगा। मालव ये राग यहाँ पर, यानी कि नॉर्थ में नहीं, इस तरफ, साउथ के तरफ, उसको मालगुंजी और मालकौस दोनों का मिश्रण है वो। और उसको उत्तर में उसको गुंजी कौस कहते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था, हमारे बहुत अच्छे गायक महाले साहब, उन्होंने मुझे बताया। थोड़ा उसका मैं चलन बताता हूँ, बंदिश तो नहीं गाता हूँ। सा गा ग सा नि सा ग ग सा नि द द नि सा ग नि ग सा गा ग म प म प ग म ग सा ग ग सा नि द नि सा ग नि ग सा ग म प म ग ग म द नि द प प प द नि द नि द प म ग म ग सा। राधे राधे अमृता बालकी ओ रे राधे राधे राधा गोविंद मुरली मुकुंद सकल सफला के ओ रे राधे राधे। इसमें जो उनकी बंदिश है, तू है रंगीला मेरा, तू दिन 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 धागे तक तू रेला में, तू है रंगीला मेरा, करत जो रंग गुनिदास तुम ही सो पाया। तू है रंगीला मेरा, करत जो रंग गुनिदास तुम ही सो पाया। तू है, ये बंदिश है। ऐसे जो राग ज़्यादा गाए नहीं, जैसे एक ग्वालियर घराने का राग है, ओंकारनाथ जी की भी रिकॉर्ड है इसकी,
तो ये ऐसे उनको एक, जब वो सीखते थे तो ये राग में पुराने इसमें द्रुत बंदिश नहीं है, तो उन्होंने ऐसे बंदिश किया। अभी ये क्या है, ये मैंने जो पहले बोला ना, ये एक आपका रियाज का काम होता है। नहीं तो मैं रियाज तो करता हूँ, लेकिन क्रिएटिविटी ये बात जो है वो अलग है। कि जैसे कि उनके और हमारे अन्ना साहब के दूसरे शागिर्द गिंडे साहब, उनकी दोस्ती बहुत थी। एक बार गिंडे साहब को टीवी पर कुछ प्रोग्राम करना था और 11th आवर में उनको ऐसा लगा कि इसकी कोई ऐसी बंदिश होनी चाहिए कि जो कृष्ण के बचपन के समय की। सो उन्होंने हमारे पिताजी को फ़ोन किया कि व्यास जी हमको एक बंदिश चाहिए, उसका एक कल्पना ऐसी होनी चाहिए। वो उन्होंने की। वो मुझे याद है क्योंकि पिताजी तब ऑफिस में काम करते थे, उनका ऑफिस में फ़ोन गया था। शाम तक ऑफिस के काम करते करते उनकी बंदिश हो गई। उसको नोटेशन किया उन्होंने और शाम को घर में आने के बाद मुझे बोला ये गिंडे साहब को दे दो आप जाके। तो ये जो कलाकार लोगों की एक दोस्ती कले के प्रति है, हमें दोस्ती और आजकल बहुत अलग दोस्ती होती है, लेकिन वो दोस्ती ऐसी थी, आप कर सकते हैं आप करके दीजिए। और ऐसे बहुत ऐसे कॉम्पोजिशन उनकी हुई है कि जो ऐसे चर्चा किसी के साथ करते हैं। क्योंकि हमारे घर में शाम को 5 साढ़े 5 के बजे के बाद 12 बजे तक आर्टिस्ट लोगों का आना जाना रहता ही था और यही चर्चा होती थी। और आज किसका प्रोग्राम किधर है, कौन फ्लाइट से गया है, कौन किस में गया है, ये बात नहीं थी। तो इसके लिए उस लोगों के एक पर जो रेसिप्रोकेशन था, उसकी वजह से ऐसे बंदिशें हुई है। और ये पिताजी की नहीं, आप सब लोगों को कितना मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अन्ना साहब के बारे में ऐसा कहते थे कि कोई स्टूडेंट आए और बोले कि मुझे ये बंदिश गा के अभी ट्रेडिशनल गा के बहुत बोर हो गया हूँ, तो कोई नई बंदिश करके दी है। ही यूज्ड टू गिव इट एट द सेम टाइम। दैट वाज हिज क्वालिटी। ही वाज ए वेरी ग्रेट personality. I am fortunate that I have seen his 61st birthday also and I have heard him many times. कहने का मतलब क्या है कि आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होना चाहिए और सबसे पहले खुद को, पहला अपना खुद का ही इंस्पिरेशन होना चाहिए। वो हिसाब से उनकी ये ऐसे बंदिशी हो गई। And the credit goes to his guru, Gudidas ji, Pandit Jagannath Baba Purohit. He was one of the best guru, and he was another person who, क्या बोलते हैं उसको, 24 hours music. अभी किसी का गाना सुना अच्छा लगा तो उसको जाके उसको घर में बोलते थे, बट छोटा होने से भी वो उनके घर में जाते थे। और यही बात आज हम लोग, मुझे एटलीस्ट बिकॉज आई एम मिसिंग ऑल दिस थिंग्स, कि हम एक दूसरे को जो सराहना करनी चाहिए। गाना सुनना है, किसी का गाना अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो तो सब यहाँ बैठने के बाद सब अलग होता है। मैं घर में बहुत रियाज करूँ लेकिन यहाँ अलग होता है। एक बार हमारे गुणिदास सम्मेलन में पंडित जसराज जी का प्रोग्राम था। अभी वो इतने बड़े और अच्छे आर्टिस्ट थे, तो मैं उनको तानपुरा वगैरह मिला के ग्रीन रूम से बाहर निकला और मैंने बोला आप तो इतने बड़े हैं, आप अच्छे ही गाते, मैं क्या बोलूँ। तो मैं बेस्ट ऑफ लक तो देना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आई एम वेरी स्मॉल। उन्होंने बोला देखो सुहास, यहाँ बैठने के बाद कोई किसी का होता नहीं है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू द आर्ट। और फिर हर एक जो श्रोतागण है, जो कोई अपने दोस्त, सबकी विशेष काम करती है वहाँ पर। तो तुम ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे से छोटे हो, तुम्हारी बेस्ट विशेष शायद काम आएगी मेरी। तो ये होता है ऐसे एक आई एम ऑलवेज I should not use that word, but I am envy with Karnataka and Goa people, because Karnataka has
produce wonderful musicians. They are blessed with voice. That is 100%. And Goa people. तो ऐसे कर्नाटक के बंगलोर में जगह आज मैं 15 साल के बाद आया हूँ और मुझे गाने को मिला है. So I am very happy. I think let us conclude with some. छोटासा प्रश्न विचारायचा म्हणजे बाबा आधी राजारामबाबा पराडकरांच्याकडे शिकले. हां, मला वाटतं 10-15 वर्ष त्यांच्याकडे नाही ते जाईपर्यंत शिकत होते. आणि मग म्हणजे ते ग्वाल्हेर घराण्याचं गाणं होतं आणि नंतर आग्रा घराण्याचं गाणं जगन्नाथ बुवांच्याकडे. तर ह्या दोघांच्याकडे शिकताना म्हणजे त्यांच्या गाण्यामध्ये आणि त्यांच्या सृजनशीलतेमध्ये म्हणजे कंपोजिशन करण्याच्या पद्धतीमध्ये कसा फरक पडला आणि पडला का? जरूर पडला. ग्वालियर घराण्यामध्ये तुम्हाला आप ग्वालियर घराने के जितने आर्टिस्ट हैं वहाँ पर कंपोज़र बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं. और राजाराम बुआ पराडकर वॉज ए आर्टिस्ट who had a legacy of tradition. Pandit Rajaram Bua Paradkar has learned from Bhatkhande also. He used to go every Sunday to his place. आज हम लोग जो नोटेशन सिस्टम है, it is established by Paradkar Bua, because he had taken efforts for that year कि नहीं ये बहुत सिंपल है, ये लोगों को समझ सकती है. पहिले मीराशी बुवाजी की और उनकी नोटेशन थोडी असं काय म्हणतात त्याला, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो जब उनके पास इतना गाना सीखने के बाद उनकी स्टाइल भी अलग थी. लेकिन एक दिन अंजनी भाई मालपेकर, यू मस्ट नो, उनके घर में पूरे रात भर प्रोग्राम था, बहुत खासा लोग थे. तो उसमें जगन्नाथ बुआ जी का गाना था. सो उनका गाना शुरू हो गया और माय फादर वॉज टोटली, यू नो, ही वॉज मेस्मराइज्ड. फर्स्ट थिंग, लेट मी बी ऑनेस्ट टू वन थिंग, जगन्नाथ बुआ वॉज नॉट ए परफॉर्मर. ही हैड ए, उनका गले का ऑपरेशन हुआ था, इसके लिए उनके आवाज़ पर कुछ हो गया था, लेकिन उनके गाने में पुकार थी. पुकार ऐसी थी कि इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव. तो तेव्हा उस टाइम पे बुआ साहब कुछ सुबह 4:30-5 बजे गाने को बैठे और वो शिवमत भैरव गा रहे थे. फयाज साहब की बंदिश है, डार डार पात तू ही समायो, तेरो ही रंग तू ही बनायो. इस भगवान का ये है कि इस दुनिया में जो भी हर पत्ता हिलता है वो तुम्हारे इशारे से हिलता है. तो वो गा रहे थे. अब उनका बोल आला, लय और वो सब अलग था, ग्वालियर से अलग था. जगन्नाथ बुआ वॉज known from Agra Gharana because he had learned from Ustad Vilayat Hussain Khan साहब. लेकिन उनकी शैली आगरा में जो एक लय का जो एक भाग रहता है वो उन्होंने उसको डायमेंशन अलग दिया. बिकॉज ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ उस्ताद थिराकवा, ही वॉज ए गंडाबंद शागिर्द ऑफ उस्ताद थिराकवा. तो उनकी लय बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना, ऐसा कहते हैं कि मैं बंदिश गाऊं तो मेरे साथ लोग गाना चाहिए. ये एक ऐसा कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए. तो वो गाते समय पिताजी को इतना ही समझ में आया कि मेरे गाने में इमोशन नहीं है. टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी फील्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक. तो उनको समझ में आया और वैसे उन्होंने बुआ साहब का गाना हमारे पराडकर बुआ के घर में किया था, लेकिन तब इतना समझा नहीं जब वो दिन समझा. सो ही वॉज कि नहीं हमको ये सीखना चाहिए. सो उन्होंने पूछा तो
बताया। अभी दो गायकी अलग, ग्वालियर गायकी एग्रेसिव, लयकारी बहुत रहती थी, बोलतान बहुत रहती थी। उसमें तो ऐसा था कि बस आप एक एक बोलतान लेते जाइए, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत तक जाना है, बस इतना ही मालूम है। उसमें ये क्यों कर रहे हैं ये लोगों को पता नहीं था। तो बुआ साहब को उन्होंने पूछा, पहले उन्होंने पराडकर बुआ जी से परमिशन लिया। अब ऐसा है कि उस ज़माने में ऐसा एक गुरु छोड़ के दूसरा जगह जाना मुश्किल था, लेकिन माय फादर्स नेचर, ही वॉज ऑनेस्ट। ही टोल्ड पराडकर बुआ कि मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। दैट डजंट मीन आई एम हैविंग एनी रॉन्ग नोशंस अबाउट यू और योर म्यूजिक। परमिशन मिल गया। तो 4-5 साल बाद पराडकर बुआ जी ने पिताजी को पूछा कि तुम वहाँ गए, क्या सीखे हो? तो पिताजी ने बोला ठीक है, मैं बताता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि गाने में एट द एज ऑफ 75 और 80 आई हैव टू बी calm एंड क्वाइट। आई कांट फाइट विद तबला एंड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज मेरा गला नहीं चलेगा। तो उस समय मेरे काम में क्या आएगा? शांत आलाप आएगा। तो वो शांत आलाप उनमें है। फिर भी उनकी गायकी अलग थी, वो भी लयकारी करते थे। लेकिन जो हम कहते शकुन होना संगीत में, प्रेजेंटेशन में, वो उनको वहाँ मिला। और वहाँ वो गए। और वहाँ जाने के बाद तब तक पिताजी कॉम्पोजिशन ऐसा ही करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन जब गुणीदास जी को पता चला कि ये कॉम्पोजिशन करता है, तो उन्होंने बोला अच्छा ये तुम्हारा कॉम्पोजिशन है, हम कैसे बिलीव करो? ही वॉज ए ओल्ड पर्सन। तो पिताजी ने बोला मैं आपसे क्यों झूठ बोला ना, ये ऐसा ही है। तो ये गुनी जान जो नाम है वो गुणीदास जी ने पिताजी को दिया है। जो दूसरों का गुण जानता है वो गुनी जान। एंड द हिस्ट्री देन एव्हरी अल्टरनेट डे ही इज टू आस्क आज काय नवीन केलं असं. अँड दॅट क्रिएटेड देन ही बिकेम सो वंडरफुल कंपोजर. सो ती त्यांच्या स्वतःमध्ये एक असं असतं ना, शिष्य को भी इंस्पायर करना चाहिए. गुरु है बोल के हर समय अगर आप उनका मिस्टेकें निकालते रहे तो आगे कभी गाएगा नहीं. सो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ गुणीदास जी. एंड ही इज द मेन कॉज C.R. Vyas become a composer. And still he was so honest, गुणीदास जी, कि कल मैंने भारती जी के यहाँ एक ललित में बंदिश सिखाई कि उन्होंने गुणीदास जी के ऊपर जो बंदिश की है, सुरन में रस तुम हो, तालन में लय गुणीदास, गीतन का भाव तुम हो. संगीत में जो जो चाहिए वो आप में है, और जो गुण आप में है वो मैं जान गुनी तन में मन तुम हो. यू आर 24 आवर्स इन माई माइंड. इसके लिए आपके जो विचार है संगीत के प्रकट किए सो विचार तुम हो. मैं जो गाने में थोड़ा बहुत इधर उधर बात करता हूँ वो आपका है. इससे मैं बरनी न जाए मुँह गुण तुम्हारो. सो बाद में उन्होंने बोला अभी मेरे ऊपर कंपोजिशन मत करो, और उन्होंने एक बहुत अच्छा आशीर्वाद पर पिताजी को कंपोजिशन किया जो मैं गा के एंड करूँगा. वो जोग में है. मोरा लाडला नाही गुणन मोह में, काहे करत मुँह से नेहा. कहत गुनीदास सुनहो गुनी जान, जाओ जहाँ विद्याधन पायो पुत्र समान. तेरो साचो गुरु राजा राम. ये बंदिश है, मैं बस उसको आउटलाइन गा के आई विल कंक्लूड माय रिसाइट. रना
लाडती दीना दीना मोरा ला नाही गुणन मोह में काहे करता मुझसे नेहा मोरा लाडला नाही गुणन मोह में काहे करता मुझसे नेहा मोरा लाडला मोरा लाडला नाई गुणन मोह में मोरा लाडला मोरा लाडला नाई गुणन मोह में काहे करता मुझे नेहा मोरा लाडला लाडला री तगुनी दास कहत गुणीदास सुना गुनी जान कहत गुनी दास गुणीदास ना गुनीदास कहत गुनीदास सुना गुनी जान जाओ जहाँ ए विद्याधन पायो पुत्र समान तेरो साजो गुरु राय जय राम मोरा लाडला मोरा लाडला। एक बुआ साहब की बंदिश है। सोच समझ ये सजना दिन दिन धके धके तू ना सोच समझ सजना सोच समझ सजना कर ले ध्यान मोरे माँ कौन कारण तोरे धा आए मैं मुहे मान हे नादान हे सजना सोच समझ ये सजना सोच समझ कर ले ध्यान मोरे माँ कौन कारण तोरे धा आई मैं मुहे माँ हे नादान हे सजना सोच समझ ये सजना सोच समझ सोच समझ Thank you very much. On the centenary year of Padma Vibhushan Pandit C.R. Vyas ji, this is a very befitting concert. Thank you so much, Pandit ji. Thank you, Vyasmurthy Katti ji and Kiran Yavgal. Dattatreya Velekar, thank you for your Tanpuras and Tanpura support. Manohar Patwardhan, thank you very much for the vocal support, and thank you for all the audience coming today.
सोच समझ ये सजना दिन दिन धक धक तू ना सोच समझ ये सजना